عالی جناب سید طارق پاشا صاحب قبلہ، دلی سے تشریف لائے مہمان مقرر، تحریک کے رفقائے کار، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی معزز دختران ملت، جو مسئلہ درپیش ہے یونیفارم سول کوڈ، وقت بہت کم ہے اور پولیس کے عہدیدار بھی ادھر ہی دیکھ رہے ہیں کہ جلسے کو جلدی سے ختم کر دوں. میں 10 منٹ کے اندر جلسے کو ختم کر دوں گا. بہرحال اشعار کی زبان میں یہ اعلان کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. 1400 سال کی تاریخ کو پروفیسر صاحب نے بیان کیا کہ اسلام کن کن حالات اور کن کن سچویشنز کا مقابلہ کرتے ہوئے سامنے آیا. میدان بدر سے لے کے آج کی تاریخ تک تمام تاریخ کو آپ کے سامنے رکھا. ہم نے تاریخ کے اس دور سے بھی گزرے، چنگیز کی چنگیزی سے گزرے، ہلاکوں کی ہلاکتوں سے گزرے، نریندر مودی کے گجرات سے گزرے، حیدرآباد کے گنیش فسادات سے گزرے. ہم باقی ہیں، ہم کل بھی باقی رہیں گے، صبح قیامت تک باقی رہیں گے. آپ غور کیجئے کہ یہ قانونی بحث کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ساری تاریخ بھری پڑی ہے کہ 18,000 علماء نے جامع شہادت دیا، اور اس ملک میں جب شریعت پہ حملہ ہوا مسلمان بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیا. جب ہم پہ امتحان لیا گیا، ہر امتحان کے سامنے مسلمان نے دنیا کو بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا. انشاءاللہ اللہ سے توقع ہے کہ دور حاضر کے امتحان میں مسلمان کامیاب ہو کے بہترین امت ہونے کا ثبوت دیں گے، بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ. یاد کیجئے وہ تاریخ جہاں جمہوریت تھی، نہ کسی کو آواز اٹھانے کا اختیار تھا. مغلیہ سلطنت کے دور میں اکبر نے جب شریعت کا مذاق اڑایا، دین الہی کو قائم کیا، اور جب دین الہی کا اعلان ہوا تو کوئی طاقتور لوگ میدان میں نہیں آئے. حضرت عمر فاروق سرنگی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں آ کے اکبر پہ جہاد کا اعلان کیا. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اکبر کا دین الہی باقی نہ رہا. الحمدللہ جس دین کے لیے حضرت عمر فاروق سرنگی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کی شہادت دی تھی، آج وہ دین باقی ہے، اس دین صبح قیامت تک باقی رہے گا. ابھی یونیفارم سول کوڈ، مسلم پرسنل لا، جب اس ملک کی آزادی کے بعد کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تشکیل دی گئی اور دستور و آئین کو ترتیب دینے کی جو کمیشن قائم کی گئی، اس کے سربر اعلیٰ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر. آج ساری گفتگو اس بات کی ہے کہ اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے یا نہ جائے. میں اپنے اس گفتگو کو صرف آئین کے مطابق رکھتے ہوئے ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آج یونیفارم سول کوڈ کی وکالت کر. گزشتہ جولائی 7 تاریخ کو ہندوستان کے وزیر روی شنکر پرساد نے لا کمیشن کو ایک لیٹر لکھا کہ یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کے لیے حکومت کی مدد کی جائے. اور جب یہ بات آئی تو سب سے پہلے ہندوستان میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان میں کوئی میدان عمل میں آئی تو مجلس بچاؤ تحریک آیا، اور 8 جولائی کے دن تحریک نے جلسہ کر کے اعلان کر دیا کہ شریعت محمدی میں مداخلت ہوگی تو آر ایس ایس کا پارا آر ایس ایس کی چند ہندوستان میں مسلمان کر کے بتائے گا کہ شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے مسلمان دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرائے گا. ارے کیا آر ایس ایس، کیا امریکہ، کیا روس
सब तबाह बर्बाद हो गए। मुसलमान गला कटाता रहा, मुसलमान जान देता रहा, लेकिन शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत होने नहीं दिया। ये हमारी तारीख है। अगर बात संजीदगी की है, बात तहजीब की है, बात अखलाक की है, बात कानून की है, बात समाजियत की है, बात अगर समाजियत की है तो समझदारी से गुफ्तगू होगी। बात अगर जाहरियत की है, बात अगर ताकत की है, तो याद रखो कि 1400 साल की तारीख दोहरा देंगे कि हम हक पे हैं और हर ताकत को हक के सामने झुका के बता देंगे कि दुनिया में हक ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकती। ये तारीख। आज अगर समाजियत की गुफ्तगू है, ख़वातीन के हुकूक की बात की जा रही है इस मुल्क में, मैं उन्वान पे आते हुए ये पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जरिए बार बार आर्टिकल 44 को रेफरेंस बनाया जा रहा है। आर्टिकल 44 क्या है? आज इंटरनेट का दौर है, कोई कानून की किताब खोलने की जरूरत नहीं है। तमाम पढ़े लिखे लोग जो नेट से वाकिफ है, आप जाओ जाके पहले आर्टिकल 44 हिंदुस्तान का दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसको एक बार मुताला कर लो। उन लोगों से, उन हिंदू भाइयों से भी मेरी गुजारिश है जो आज आरएसएस और बीजेपी के प्रोपेगेंडा के जरिए, ज़राए अबलाग के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए जो मनाफरत सारे मुल्क में फैलाई जा रही है हिंदू मुसलमान के नाम पे। अरे इस मुल्क में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं, इस मुल्क में झगड़ा है तो वीर सावरकर और अम्बेडकर का झगड़ा है। मुस्तकबिल में यह फैसला करेगा कि यह मुल्क अम्बेडकर के कायम करदा कानून के मुताबिक चलेगा या वीर सावरकर के नजरिए पे इस मुल्क के आईन को तरतीब दिया जाएगा। इस मुल्क में अम्बेडकर की जगह सावरकर कर लेगा। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की रही, बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट में आप खुद गौर कीजिए कि इस मुल्क के 15 करोड़ आदिवासी एसटी शेड्यूल कास्ट का एक अंजुमन, ऑल इंडिया आदिवासी संगठन के लोग सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इंप्लीडिंग पिटीशन डाल दिए। इस बात पे टीवी चैनल बहस नहीं कर रहा। आज टाइम्स नाउ का अर्नब गोस्वामी, जिसका बाप आरएसएस का कार्यकर्ता था, जिसकी तारीख सारी जाफरानी है, आज टीवी चैनलों पे बैठ के अर्नब गोस्वामी ये बताएगा कि शरीयत क्या है, ट्रिपल तलाक क्या है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लड़ाई इस मुल्क में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जैसा कि पेशा मुखर्रिर ने कहा कि हिंदू मुसलमान के कॉन्सेप्ट को तैयार किया जा रहा है और ये बावर किया जा रहा है कि इस मुल्क में अक़लियत और अक्सरियत की बुनियाद पे हुकूमत चलेगी। तो याद रखो, दुनिया की तारीख है मेरे भाई कि जब मैं तवज्जो का मुतमन्नी हूं और प्रोफेसर साहब और वकील साहब का भी तवज्जो का मुतमन्नी हूं कि मेरी बात आज याद रखो कि जिस जमहूरियत में जब कोई अक्सरियत हिंसों की ताकत की बुनियाद पर किसी अक़लियत के जमहूरी हुकूक को पामाल करती है, उनके हुकूक को ख़त्म करती है, तो याद रखो उस मुल्क में समाजी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, खाना जंगी का आगाज हो जाएगा। आज कुछ ऐसा माहौल आरएसएस करना चाहती है इस मुल्क में। हम किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, हम किसी हिंदू के पर्सनल लॉ में तब्दीली का मुतालबा नहीं किया। इस मुल्क में 800 साल मेरे असलाफ ने हुकूमत की, लेकिन किसी हिंदू मजहब में तब्दीली लाने के लिए किसी पे जबर नहीं किया। ये हमारी तारीख है। हम किसी ईसाई मजहब में तब्दीली की बात नहीं करते, सिख मजहब में तब्दीली की बात नहीं करते, आज जैन मुनियों के मजहब में तब्दीली की बात नहीं करते। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो बहुत बड़ी डिबेट है कि जैसा मौलाना ने कहा, मोहतरम ने कहा कि केरला में एक तरीके की हिंदुत्व चलती है तो बंगाल में एक तरीके की हिंदुत्व चलती है। तहजीब की बुनियाद पे अपने अपने रस्म और रिवाज है। अरे हमको किसी के रस्म और रिवाज से ना कल इख्तलाफ था ना आज इख्तलाफ है। हम तो अमन का और इंसानियत का पैगाम लाए। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में लाए तो हिंदुस्तान को तारत दिया। हिंदुस्तान में आज 20 करोड़ की ताकत में हम हैं, तो ये सदक़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत का सबब है कि हिंदुस्तान में आज इंसानियत जिंदा है। ख़वातीन के हुकूक हमको सिखाने वाले, अरे हमारी तारीख है कि किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना देने का जो मजहब
पैगाम देता है इंसानियत को, क्या वो मजहब अपने शान हयात का हक मार सकता है, अपनी बेई का हक मार सकता है? ये तो माशरे की गलती है। कुछ लोग अपनी तबीयत के मुताबिक शरीयत को ढालकर शरीयत के नाम पर अपने मफादात वो कल भी हासिल करते रहे। 1400 साल की तारीख है, वो आज भी है, कुछ ऐसे लोग कल भी रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीयत में गलती है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस में भाई इस मुल्क का आईन ऐलान कर रहा है कि दफे 25 के तहत इस मुल्क का हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला फर्द अपने मजहब के मुताबिक इस मुल्क में जिंदगी बसर करे। लेकिन आर्टिकल 44, अब मैं पूछना चाहता हूं कि शाबानू का केस हुआ, उसके बाद मुस्लिम प्रोटेक्शन वुमन बिल आई, फिर उसके बाद 2001 में आज सब खामोश है। शमीम आरा केस के अंदर ट्रिपल तलाक के मसले में फैसला हो गया, हम खामोश बैठे रहे, ये समझे कि कुछ नहीं होगा। 2002 के अंदर शमीम आरा केस में जब ये फैसला आया तो हम सो रहे थे। उसका नतीजा ये है कि आज शरीयत पे हमला हो रहा, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही। आज सायरा बानू केस के अंदर, अब ये आप सुप्रीम कोर्ट बताए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? फिर एक बार सबसे गुजारिश है, इसलिए कि जिस सब्जेक्ट पे आपको नॉलेज नहीं होता तो आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आज नॉलेज की लड़ाई है दुनिया में। आज मुस्लिम नौजवानों से मेरी तवज्जो है कि पहले जाके सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा, अखबारात क्या कह रहे हैं, हालात क्या है और शरीयत क्या है, हर शख्स को चाहिए कि मुताला करे। और हर बच्चे को चाहिए जो अंग्रेजी से वाबिस्ता है, जो उर्दू से वाबिस्ता है, नॉलेज हासिल करे कि हो क्या रहा है मेरी शरीयत के साथ। जब तक आप नहीं समझेंगे तो दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये नहीं कि फरद खान की तकरीर सुन लो या किसी की तकरीर सुन के जमावाड़ा करे, जम्मे गफीर करे। जब आप अपने मकसद को समझेंगे तो मकसद को हासिल करने के लिए आप मैदान में आएंगे। वो फौज जो अपने मकसद के लिए लड़ती है, उस फौज से दुनिया की कोई मिलिट्री नहीं लड़ सकती। आज मैं ऐलान करता हूं, जिस 10 हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान शरीयत को समझेगा और शरीयत के पहलुओं को समझेगा और मैदान में उतरेगा तो दुनिया की कोई ताकत उससे मुकाबला नहीं कर सकती। आज इस जलसे का पैगाम ये है कि शरीयत को समझो, समाज को समझो, कानून को समझो। आज इंटरनेट का दौर है। आर्टिकल 25 टीवी पे डिबेट हो रहा, आर्टिकल 14 पे डिबेट हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 44 पे डिबेट हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 23 नवंबर 1948 में हुई थी। क्या कोई आज टीवी डिबेट या सहाफी लिखने के लिए तैयार है कि 1948 23 नवंबर को ऐवान में नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बहस हुई? मद्रास के मोहम्मद इस्माइल साहब उठ खड़े हुए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आवाज दिया कि ये आर्टिकल 44 की बुनियाद पर कल आर्टिकल 25 आजादी मजहब खत्म हो जाएगा। और फिर महबूब अली बेग बहादुर उठे और उन्होंने उस वक्त अम्बेडकर के सामने ये रखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 44 को खत्म कर दिया जाए, इसलिए कि आर्टिकल 44 नाफिज होगा तो आर्टिकल 25 आजादी मजहब खत्म हो जाएगी। के.एम. मुंशी उस वक्त के सबसे बड़े कानूनदान हिंदुस्तान के, उन्होंने उठा और वकालत की। के.एम. मुंशी तो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने ऐलान किया कि ये दफे आर्टिकल 44 को बर्खास्त कर दिया जाए। फिर बोकर साहिब उठे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों की जानिब से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज हिंदू तबके की जानिब से आवाज उठा रहा हूं कि हिंदू मजहब के अंदर हम एक नहीं बल्कि अनेक तरीक़ेकार और तहजीब रखते हैं, और किसी एक तरीक़ेकार को अपनाया जाएगा तो आदिवासी का हक खत्म हो जाएगा, दलित का हक खत्म हो जाएगा। जहां आदिवासी ऐलान कर रहा है कि मैं किसी मूर्ति पूजा में यकीन रखता, मैं हवा को पूजा करता हूं, मैं सूरज को पूजा करता हूं, मैं पानी को पूजा करता हूं, मैं जमीन को पूजा करता हूं, और मेरा मरने के बाद मुझको जलाया नहीं जाता बल्कि दफन किया जाता, ये आदिवासियों का ऐलान है।